So these were the importance of water. So complete digestion of food, right? We need water so that the food can be digested properly in our body. Next is water helps to improve the circulation of oxygen throughout the human body. Throughout the human body. Next is water bodies are used for transportation purposes. Next is spreading of plants. Seedlings are carried out by flowing water as transporting from one place to another. Next is fishing can be incorporated as business those who stay near the water body. So 1 second, mom, I'm writing. yes, so it also helps in fishing, right? Yes, mom. Next is fast movement of water possesses the kinetic energy which is used sometimes to turn the turbine and generate electricity. So for generating electricity, right? Yes, mom. You know that how water is essential to Hydroelectricity. yes, hydroelectricity. Hydro is water and the electricity which is produced by the help of water. Okay, so next is you written, I mean, you have written till here. Yes, mom. Okay, so next we talk about potable water. So potable water क्या होता है? That is useful for drinking, suitable for drinking, right? जो हम पानी पीने के लिए हमारा suitable हो उस पानी को हम बोलते हैं potable, potable water, suitable for drinking by human beings. So any source as we discuss is not suitable, right? हम हर जगह का पानी तो नहीं पी सकते बिकॉज जैसे ओशियन का है वो बहुत सॉल्टी वाटर होता है, कोई मडी वाटर होता है, हम हर जगह का पानी तो नहीं पी सकते हैं ना, बिकॉज उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, राइट? सो हम क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन शुड बी कैरिड आउट टू रिमूव द सस्पेंडेड पार्टिकल्स and microorganisms killed, right? So Yes, mom. filtration is done. Filtration is done. Filtration is why filtration is done? To remove, Dust particles and impurities. yes, remove suspended particles and microorganisms
killed before water reaches to us. Water reaches to the municipal water supply. So otherwise common diseases क्या हो सकते हैं? अदरवाइज जो डिजीजेस हो सकते हैं, अगर हम अच्छा पानी नहीं पिएंगे तो हमें क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं? डायरिया, राइट? Yes, डायरिया और what noise is this, Navishta? ma'am, that car, they are removing the car part. Okay, so now you understood what is potable water, right Navishta? कि जो पानी हमारे लिए अच्छा होता है, हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, सो उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं. सो हम नेक्स्ट बात करते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस की. So the chemicals and microbes present in water may cause diseases. So इनको हम कहते हैं waterborne diseases. So the chemicals and microbes present in water may cause diseases. तो इनको हम बोलते हैं waterborne diseases. ओके, सो कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं? जैसे मैंने अभी बताया, डायरिया, देन टाइफाइड, जॉन्डिस, cholera, next is gastroenteritis, और उसके बाद नेक्स्ट इज, अभी मैं करती हूँ बैक उस पर, अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक डिजीज को. Okay, ma'am. डायसेंट्री. ओके, सो हम फर्स्ट बात करते हैं डायरिया की. सो डायरिया हमें कैसे होता है? डायरिया हम कहते हैं फ्रीक्वेंट लूज मोशन को, या फिर इन्फेक्शन इन इंटेस्टाइन. फ्रीक्वेंट लूज मोशन या इन्फेक्शन इन intestine. So are the characteristics which results in, जिसकी वजह से क्या होता है? Loss of water in body. राइट, हमें लूज मोशन होते हैं, इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें, हमारी बॉडी में वाटर लॉस हो जाता है. ठीक है, उसको हम डायरिया कहते हैं. अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइफाइड की. सो टाइफाइड हमें कैसे होता है? बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर कॉज दिस विच रिजल्ट इन फीवर फॉर लॉन्ग टर्म. ठीक है, तो ये किस लिए होता है, कैसे होता है? बैक्टीरिया कहाँ जो वाटर में प्रेजेंट होता है. ठीक है,
इन वाटर, जिससे हमें क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म फीवर। राइट, उसके बाद हम जॉन्डिस की बात करते हैं। तो ये क्या होता है जॉन्डिस? हेपेटाइटिस affects the liver leading to nausea, इसकी वजह से हमें क्या होता है, नौसिया, वेट लॉस, राइट, और स्टमक पेन। उसके बाद कॉलेरा क्या होता है? कॉलेरा ये होता है फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग में टर्न टू फेटल। ठीक है, जब हमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग हो जाए, एक्सेसिव वॉमिटिंग, और गैस्ट्रोएंटेरिटिस ये होता है पेन इन स्टमक with loose motion. Understood, Navishta? No, ma'am. You understood or not? No, ma'am. Which one you didn't understood? Ma'am, the last one, guess. Gastroenteritis ये क्या होता है? ये हम किसको बोलते हैं कि जब हमारे पेन होता है स्टमक में और हमें उसके साथ लूज मोशन भी होते हैं। जैसे डायरिया में क्या होता है, बस लूज मोशन होते रहते हैं, लेकिन अगर गैस्ट्रो मतलब हमें गैस का भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब हमारे स्टमक में पेन भी होगा और लूज मोशन भी होंगे। ठीक है, Okay, ma'am. रिटन नविष्ठा? ओके, No, ma'am. राइटिंग? Yes, ma'am. ओके, Done, ma'am. ओके। तो नाउ हम लास्ट बात करते हैं एक डिसेंट्री की। डिसेंट्री क्या होता है? इट इज द अमीबा, as amoeba infects the intestinal wall, जिसकी वजह से क्या होता है, क्या कॉज होता है, एक्यूट एक्यूट स्टमक पेन, और उसके साथ along with ब्लीडिंग। अब ये क्यों होता है, ये किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ एज एक्सेसिव म्यूकस secretion along with लूज मोशन। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं प्यूरिफिकेशन
ऑफ नेचुरल वाटर। क्या क्या डिफरेंट वेज हैं कि हम वाटर को प्योरीफाई कर सकें और उसे अपनी जो हमारे लिए बेनिफिट करे उस फॉर्म में बना सकते हैं। सो पहला होता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसमें क्या होता है, water is allowed to stand for while which make all the impurities to get settled down. So this water after this sedimentation sent to loading tank. क्या होता है कि जब हमारे पास खूब पानी होता है तो हम उसे स्टैंड स्टिल कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, इम्प्योरिटीज नीचे सेटल हो जाती हैं, सबसे नीचे। ठीक है, फिर हम उसको वाटर टैंक्स में फिल करते हैं और उसको लोड कर देते हैं, भेज देते हैं आगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है लोडिंग। लोडिंग में क्या होता है, टू एंश्योर ऑल द इम्प्योरिटीज गेट सेटल्ड डाउन एंड सर्टेन केमिकल्स सच एज एलम आर एडेड। लोडिंग में क्या होता है, इम्प्योरिटीज सेटल डाउन और एलम जो एक क्या है, केमिकल है, वो ऐड करते हैं। ठीक है, ओके नविशा? ओके मैम। चलो इसके बाद आता है थर्ड, फिल्ट्रेशन। So layers of fine sand, gravel and charcoal used for filtration. क्या क्या होता है, सैंड, ग्रेवल, चारकोल। ये क्या किस लिए यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए। So all the down. हाँ, what are you saying Navishta? Should I write it down? Yes, you write it. So all the suspended particles now get removed. अब इन सब की एडिशन की वजह से क्या होता है, तो हमारे जो पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। सो कैसे हम किस चीज से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय एडिंग ब्लीचिंग पाउडर। इसका स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, इसमें हम ऐड करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। So the boiling water is also sometimes performed to kill microbes. So क्या होता है, boiling water used to kill microbes. ऐसा होता है ना कि जब हमें पानी थोड़ा वो लग रहा होता है तो हम बॉईल कर लेते हैं तो उसकी इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं, या फिर उसे ठंडा करते हैं तो नीचे सेटल हो जाती हैं। ठीक है, बॉईल करने से भी, पानी को बॉईल करने से भी काफी जर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट
storage. So water before supply stored in storage tank. Water before supply stored in storage tank. Should I move to next slide? Yes, ma'am. Okay. So next is water is a universal solvent. So solute dissolves in solvent, forms solution. So in solution, the amount of solvent is at large extent as compared to solute. So any substance in water is known as aqueous solution. तो क्या बोलते हैं हम? Solute dissolves in solvent. वो क्या फॉर्म करता है? सॉल्यूशन. सो हम किस 2 टाइप्स के हम सॉल्यूशन की बात करते हैं. पहला तो है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा है अनसैचुरेटेड. So saturated solution and unsaturated. So a solution which cannot dissolve any more solute into it at a particular temperature, उसको हम कहते हैं saturated solution. Saturated solution क्या होता है? A solution which cannot dissolve any more solute into it at a particular temperature, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन which take up more solute at a given temperature, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. सॉल्यूशन जो और सॉल्यूट ले सकता है एक गिवन टेम्परेचर पे. ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके नविष्ठा? ओके मैम. ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं salinity of sea.
So in sea water, many impurities along with heavy minerals are present, so which take it totally unfit for drinking purpose. So क्या होता है सी में क्या होता है कि जो वाटर होता है उसमें बहुत इम्प्योरिटीज होती हैं, राइट, इम्प्योरिटीज विद हेवी मिनरल्स. सो जिसकी वजह से क्या होता है, इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. So the amount of sodium chloride, commonly called as common salt, is a greater extent in sea water. Sea water में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट, वो सी वाटर में प्रेजेंट होता है, राइट नविशा? सो यस मैम. हम इस जो कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट होता है, इस वाटर को हम प्योरीफाई किस प्रोसेस से करते हैं, डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन. सो इसमें क्या होता है, दिस salt water is purified by the process of distillation. ठीक है, ये सॉल्ट वाटर प्योरीफाई हो जाता है, और कैसे प्योरीफाई होता है कि डिस्टिलेशन से. सो एज सी वाटर इज प्रेजेंट एट ग्रेट अमाउंट, राइट, सबसे, क्योंकि हमारा बहुत 70% of the water is present in oceans and sea. So sea water is present at great amount. So there is a large scale distillation plants या boilers are used to place of burners, and condensing coils are used for cooling in place of condenser. ठीक है, so क्या होता है, सी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए बॉयलर्स लगाए होते हैं, और उसको कूल करने के लिए कंडेंसर्स. ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं. वाटर पॉल्यूशन कैसे कैसे होता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज कि वाटर पॉल्यूशन होता है. फर्स्ट इज डोमेस्टिक सीवेज. Domestic sewage. Then next is the pollution caused by industrial and agricultural operation. Next is
pollution due to chemicals. Next, fourth is thermal pollution. ओके, सो हम पहले बात करते हैं डोमेस्टिक सीवेज की। डोमेस्टिक सीवेज, सो डोमेस्टिक सीवेज क्या होता है? जो हम घरों में पानी यूज कर रहे होते हैं, चाहे वो हम अपने बाथिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं या फिर यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए। सो डोमेस्टिक सीवेज इज वेस्ट वाटर फ्रॉम आवर होम्स, कंटेन्स many dissolved and suspended impurities, right? तो ये क्या होता है? वेस्ट वाटर at our homes. So people dump their garbage into streams, lakes, rivers and seas, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट होता है? इट रिजल्ट इन पॉल्यूटिंग दी वाटर विद कैन्स, बॉटल्स। तभी हम बोलते हैं ना कि हमें अपना ये जो हम खाने पीने की चीजें यूज करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक बैग्स हो, चाहे ये कैन्स हो, बॉटल्स हो, हाँ, या हाउस होल्ड वेस्ट हो, वो हमें सी में या फिर लेक में या रिवर में इसमें नहीं डालना चाहिए, बिकॉज ये उसको पॉल्यूट कर रहे होते हैं, राइट? सो नेक्स्ट इज पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन रन ऑफ हैज अ हाई नाइट्रेट कंटेंट। इसमें क्या होता है? इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता है? हाई नाइट्रेट। So due to excessive use of fertilizers and pesticides, so as the water seeps into the ground, it greatly affects the groundwater quality, leading to pollute it. So in case of industries as oil refineries या फिर paper factories या फिर textile या sugar mills discharge their toxic chemical waste into the river, right? So industry और एग्रीकल्चर ऑपरेशन कैसे हार्म कर रहे हैं? बिकॉज वो अपना जो टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक केमिकल वेस्ट, वो कहाँ डिस्चार्ज कर रहे हैं? इनटू द रिवर। ओके, और उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है हमारा पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल्स। अब क्या होता है कि केमिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर ड्यू टू केमिकल्स सच एज कंपाउंड ऑफ arsenic, fluorides and lead cause plants and animals to die because chemicals अगर water में mixed होंगे, जैसे कि arsenic, fluoride या फिर lead, इसकी वजह से क्या होता है? plants and animals die बिकॉज प्लांट्स के पास भी वही पानी जा रहा है और एनिमल्स भी पानी पी रहे हैं वो। सो द सॉइल इज ऑल्सो अफेक्टेड, क्योंकि वो सॉइल में भी मिलता है पानी, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी खराब करता है, राइट? सो soil is also affected by polluted water, causing changes in its acidity and therefore the growth of plant life. Polluted water is unsuitable for, सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं, सॉइल को इनफर्टाइल बनाता है, ठीक है? और क्या करता है कि polluted water is
unsuitable for ड्रिंकिंग या एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो उसके बाद द लार्ज क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स दैट आर वॉश्ड इन फ्रॉम द फील्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गे। So once the algae die, it serves as a food for bacteria. As a result, a lot of oxygen in the water is used up and many aquatic organisms die. अब क्या होता है कि ये जो पानी जो केमिकल्स जिसमें मिक्स होता है वो पानी जाता है रिवर्स में और सी में, तो वहां क्या जाता है, जाके जमा होता है और वो क्या होता है, एल्गे बन जाता है। ग्रीन ग्रीन नहीं होता, ग्रीन ग्रीन, तो वो सेटल डाउन हो जाता है, उसकी वजह से बैक्टीरिया बनते हैं और उस पानी को खराब कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन इतनी ले लेते हैं वाटर में कि वहां के जो और ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं सी के, वो डाई कर जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं थर्मल पॉल्यूशन की। सो थर्मल पॉल्यूशन, thermoelectric plants release large amount of hot water along with chemically active pollutants in lakes and river। इसमें क्या होता है, hot water plus chemicals। ठीक है, और ये सब कहाँ जाते हैं, रिवर्स और लेक्स में। सो दिस हॉट वाटर इज फास्टन द रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गे। इसकी वजह से क्या होता है, एल्गे बनता है। सो वंस द एल्गे डाई, अब इसमें भी यही होता है कि वो पानी में मिल जाता है, फिर जैसे ही एल्गे डाई, एल्गे डाई, तो वो क्या बन जाता है। Get anything from algae? व्हाट आर यू सेइंग नमस्ता? Ma'am, do we get any protein or minerals from algae? Proteins and minerals from algae? No. Okay, So ma'am. yes, so क्या होता है कि वो फूड बन जाता है बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, अब बैक्टीरिया के लिए फूड बन जाता है तो बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं। सो एज अ रिजल्ट लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज यूज्ड अप एंड मेनी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डाई। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, aquatic organisms die. So this type of pollution is called thermal pollution। इस टाइप की pollution को बोलते हैं thermal pollution। So next हम अब इस चैप्टर में दो टॉपिक और रह गए हैं हमारे। एक है मेथड ऑफ प्रिजर्विंग, so methods of preserving pollution। The sewage should be treated first before it release into water। so क्या होता है कि पहले ही सीवेज जो है should be treated first before sending it to what river या फिर कोई और लेक्स में, उसको पहले ही ट्रीट कर लेना चाहिए। कहाँ पे, रिवर और लेक्स में भेजने से पहले। ठीक है, उसके बाद द पॉल्यूटेड, और क्या मेथड हो सकते हैं, तो पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से जो हमें पॉल्यूटेड वाटर मिल रहा है उसको फर्स्टली अंडरगो थ्रू एफ्लुएंट ट्रीटमेंट एंड देन ओनली अलाउ टू पास आउट। ठीक है, इंडस्ट्री जो जो मिल रहा होता है उसको
एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए उसकी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट करनी चाहिए, तब उसको पास करना चाहिए आगे। ठीक है, रिवर्स में या लेक्स में, जहां भी इंडस्ट्रीज के वेस्ट को भेजा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स फार्मर शुड प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो फर्टिलाइजर्स को प्रमोट ना करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए फार्मर्स को। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रीज एंड प्लांट्स में बी प्लांटेड अलोंग द रिवर बैंक। ट्रीज और प्लांट्स को कहाँ लगाना चाहिए? अलोंग साइड रिवर बैंक। ठीक है, उसके बाद बाथिंग एंड क्लीनिंग ऑफ एनिमल नियर एनी वाटर सोर्स शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, जो एनिमल्स हैं उनको ये यहाँ पे नहीं निलाना चाहिए, ताकि वो पूरा पानी ना गंदा कर दे जहाँ पे वाटर सोर्स है। उसके बाद डेफिकेट इन ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम मिक्सिंग इन वाटर। Human and animal excreta should be prevented, not avoided, should be from mixing in उसके बाद ये तो सारे थे हमारे मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग पॉल्यूशन। उसके बाद wait, I'll write. ओके, ये डबल ई है, ट्रीज। रिटर्न नविशा, रिटर्न नविशा। Should I move? Yes, Mom, now you can. Okay. So our last topic of this chapter is why there is a need to conserve water.
So need to conserve water. So how we can conserve water? पहला तो है rain water harvesting. Do you know what is rain water harvesting? Yes, ma'am. Good. Rainwater harvesting is a process where we harvest rainwater by collecting it and saving it Right. for later purpose. Next is method of water pollution preservation must be avoided. Next is at individual level, avoid wastage of water. Next, awareness programs should be carried out to promote conservation of water. So awareness programs. Last is plantation of trees. Plantation of trees should be done. Right, Navishta? Yes, ma'am. So you are writing this? Yes, ma'am, I wrote. Okay, so Navishta, we are done with this chapter. So I hope all the topics are completed as per your book. Anything you want to say? No, ma'am. So now tomorrow we will do the question answers of this chapter, water. Okay. Tomorrow you are having exam also, right? Yes, ma'am. There are 2 exams because of Republic Day it got cancelled. Oh, what are the tools? I mean, one is physics and the Physics other and chemistry. chemistry. Physics and chemistry. But your chemistry is on 31st. No, ma'am. It will be tomorrow. So both Will it physics. change? I'm not sure about that. Ma'am has only messaged us until now for physics, not for chemistry. Okay, so tomorrow you are having physics and Some another test. yes, because chemistry is on 31st, not on 26th. I remember. And Yes, ma'am. Year okay, 28 physics. okay. So okay, so tomorrow in tomorrow's class we will discuss the question answer of this chapter. Okay? Okay, ma'am. So now you are fine with the chapter? Yes, ma'am. I'm fine with the chapter. Okay. See you tomorrow, Navishta. Bye, ma'am. Have a nice day. Bye. You too. All the best for physics. All the best for physics. And take care. Thank you, ma'am. Okay. Bye.